Once again, I welcome you in my class. As you know that its name is Siva is English Zone and I am Shivanand Singh. तो आइए चलने से पहले मैं आपसे बता दूं कि मैंने पिछली वीडियो में आपको ये पैराग्राफ कंप्लीट कर दिया था और इस नेक्स्ट वीडियो में मैं पढ़ाऊंगा माय आर्म्स वर फुल। आप अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए, दैट इज़ माय रिक्वेस्ट। एंड प्लीज़ वॉच द वीडियो कम्प्लीटली एंड ट्राई टू शेयर दिस वीडियो टू द children, to the students who have not that facility of YouTube video classes. Okay, let's start. My arms were full. मेरे जो हाथ थे भर गए. It means a lot of articles have been purchased by the author, so there is no space is left in his hand. I had no room. It means there is no space left. Let along any need, and there is no need to purchase any more basket for another basket, as you know that. It means आप कह सकते हैं कि लेखक इट मीन्स विलियम से डगलस ने इतनी सारी टोकरी पहले ही खरीद रखी थी कि उनके हाथ में कहीं और पकड़ने की जगह नहीं थी और उन्हें और ज़्यादा टोकरी खरीदने की कोई आवश्यकता भी नहीं थी. बैलेंसिंग माई बास्केट एंड फैंस ऑन माई लेफ्ट आर्म, I reached into my right coat pocket and got a handful of change. It means, as you know that she pleaded the writer to buy her basket. But as you know that the writer have no need to buy any extra basket, but he wanted to help that little girl. So he adjusted all the purchased item in his left hand and he put his right hand into his pocket to collect some pennies. तो ज़रूरत तो थी नहीं कि कुछ ख़रीदा जाए, तो उन्होंने अपने सारी टोकरी सारे फैंस को लेफ़्ट हैंड में शिफ्ट करके राइट हैंड को अपने पॉकेट में डाल करके कुछ चिल्लर रुपए सिक्के पैसे निकाले. Perhaps 15 cents in all, which I deposited in the basket that the young girl held imploringly before me. It means when the writer put his hand in his coat pocket, he collected 15 cents and he put these 15 cents in the basket of that little 9 years girl. I tried to explain. It means the writer tried to explain that little girl I could not buy the basket. It means the writer is unable to buy the basket. He wanted to explain the reason why he cannot buy the basket, but extended the gratitude as a substitute. It means the little girl was not ready to listen any explanation of the writer. लेखक उस लड़की को बताना चाहते थे कि बेटा देखो, मैं आपकी टोकरी खरीद तो नहीं सकता हूँ, लेकिन आपको ये कुछ पैसे ज़रूर मदद के तौर पे आपको दे सकता हूँ. ये बताना चाहते थे उसको, लेकिन वो लड़की एक तरह से कहा जब उनकी बात सुनने, उनके एक्सप्लेनेशन को सुनने को तैयार नहीं थी. आई रियलाइज एट वंस व्हाट ऑफेंस आई हैड गिवन. इट मीन्स द राइटर वॉज वेरी वेरी सेंसिटिव एंड इंटेलिजेंट. ही क्लियरली ऑब्जर्व द रिएक्शन ऑफ दैट लिटिल गर्ल. जैसा आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट के जज थे हमारे लेखक महोदय, वो तुरंत भाप गए, जान गए कि इस लड़की का स्वभाव बता रहा है कि ये मेरे इस व्यवहार से खुश नहीं है. This child of 9 dressed in rags and on the edge of starvation. As you know that the personality of the little girl was not impressive outwardly. It means that girl have not a complete cloth, not complete dress, and he was on the edge of starvation. It means she had not food for the survival, and the year of the age only 9. Raised her chin, reached into the basket, and with all the pride and graciousness of a lady, handed the money back to me. It means उस लड़की ने पूरे एक महिला के सम्मान, आत्मसम्मान, जो उसका गर्व है, उस भाव के साथ उसने वो 15 सेंट टोकरी से निकाले और लेखक को हैंड ओवर कर दिया. It means that little girl of 9 was not ready to accept the money as a help, because she was not ready to take the alms. वो भीख लेने को बिल्कुल तैयार नहीं थी. She wanted to purchase my basket, then paid me.
पहले आप मेरी टोकरी खरीद लो, पैसे दो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इस तरह से भीख मुझे नहीं चाहिए। ये उस लड़की का व्यवहार है जो भुखमरी की कगार पर जो चिथड़े लपेटे हुए है और मात्र 9 वर्ष की आयु है। उसका ये व्यवहार विलियम सी डगलस को जम गया, जच गया। There was only one thing I could do. It means there was no option. There was no option to the writer. Only one option, and that option was only buy, only purchase the basket. सिर्फ खरीद लिया, I bought the basket. It means the writer had to bought. The writer had to bought the basket of that 9-year little girl. She wiped her eyes. यानी जो थोड़े आंसू आए थे आंखों में उसको उसने पोंछा, उस छोटी लड़की ने स्माइल्ड, मुस्कुराई एंड डैश डाउन द प्लेटफॉर्म, और तेज़ी से प्लेटफॉर्म से नीचे उतरी, हेडेड फॉर सम ग्रास हट, और किसी घास फूस की झोपड़ी के अंदर प्रविष्ट हुई। दैट वुड हैव द लीस्ट 30 सेंट दैट नाइट, और उस रात कम से कम उसके पास 30 सेंट की आय या आमदनी हो गई। इट मीन्स व्हेन द राइटर परचेज द बास्केट ऑफ दैट लिटिल गर्ल, शी बिकम वेरी वेरी हैप्पी, and taking the money he just run away from the platform and entered into a grass house or a hut. I told this story to Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru. It means, as you know that I have clearly mentioned this event in the beginning of the chapter, कि this event means that meeting of the little girl and the author was very very impressive. हमने बताया था आपको शुरू में कि लेखक की इस लड़की के साथ जो मुलाकात थी वो काफ़ी प्रभावित कर देने वाली थी। एंड द राइटर मेंशन्ड दिस इवेंट, दिस इंसिडेंट टू आवर प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू. I told him it was one reason I had fallen in love with India. That was the single reason. The writer had the single reason to love India, and that was the behavior of that little 9-year girl. She had the pride. She had the pride. She was near the age of starvation. She had not proper clothes, and she was only 9 years old. But the behavior of that little 9-year girl was very mature. She was not ready to accept any money as a alms. She wanted to purchase my articles, then pay me. That was the attitude of that 9-year girl, and that attitude of that little girl is very impressive in sense of the writer. The people I saw in India, those in the villages as well as those in high offices. It means both the urban people and the rural people of India both have the same kind of behavior felt by the writer. Have both pride and lovely sense of decency and citizenship. It means both have how to welcome, how to behave to the people. They have both the knowledge. Both the, it means दोनों लोग, चाहे वो गांव के रहने वाले हों चाहे शहरों के रहने वाले हों, दोनों लोगों में एक गर्व था। उन्हें अपने देश का निवासी होने का गर्व था, उनमें नागरिकता, उनमें सज्जनता का पूर्ण समावेश था। एंड दैट क्वालिटी इम्प्रेस द राइटर वेरी मच. दे आल्सो हैव अ पैसन फॉर इंडिपेंडेंस. एज यू नो दैट ऑल द इंडियन हैव अ ग्रेट पैसन फॉर इंडिपेंडेंस. विदाउट दिस पैसन वी नेवर गेट इंडिपेंडेंस. This beautiful child born in squalor and poverty, it means below the poverty line. That little girl was born below the poverty line and uneducated in both manner, and it means literally and socially. There was no particular education that girl had been got. उस छोटी सी लड़की ने सामाजिक तौर पे या शैक्षिक तौर पे किसी तरह का कोई ज्ञान प्राप्त नहीं किया, जो गरीबी में गंदगी में पैदा हुई. had given me a glimpse of the warm soul of India, and that little girl showed me the real India as he had heard about India. उन्होंने कहा कि जैसा मैंने भारत के बारे में सुन रखा था, उस भारत की जीवंत झलक दिखला दी मुझे इस लड़की ने. It means that was the most passionate and impressive event happened with the writer.
तो इस प्रकार से ये चैप्टर ख़त्म हुआ, इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने आपको प्रेजेंट कर दी है। और जैसा मैंने आपको बार बार कहा है कि आप मुझे इंटरेक्शन कर सकते हैं, मेरे साथ वार्तालाप कर सकते हैं कमेंट के थ्रू। आप अब क्या चाहते हैं, आप जब तक अपने कमेंट सेक्शन, ये मेरा कमेंट सेक्शन आपका इंतज़ार कर रहा होता है, आप अपने कमेंट सेक्शन में बताइए कि अगला वीडियो आप किस पोर्शन से पढ़ना चाहते हैं, प्रोज का, शॉर्ट स्टोरी का या पोइट्री का। और जब तक आप अपने कमेंट मैक्सिमम लोग नहीं देते तब तक मैं अगला वीडियो आपको नहीं प्रेजेंट करने वाला, क्योंकि मुझे पता नहीं चल पा रहा कि यूट्यूब के थ्रू मैं आपको वीडियो तो दे देता हूं, लेकिन रिएक्शंस आप नहीं देते तो मुझे पता नहीं चल पाता कि आप क्या पढ़ना चाहते हैं और जो पढ़ाया जा रहा हो कितना समझ में आ रहा है, आपको किस तरह के वीडियोस चाहिए, सिंपल हिंदी में चाहिए या वर्जनली इन इंग्लिश चाहिए या बोथ इन बायलैंग्वेज। मैंने इसको कई वीडियोज़ में मेंशन कर चुका हूँ। तो चलते चलते आप अपने कमेंट ज़रूर लिखते जाइएगा, मुझे काफ़ी हेल्प होती है आपके कमेंट से जानने समझने में कि अगला वीडियो आप किस पर चाहते हैं। तो एक बार फिर से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लीज़ शेयर करिए, ग्रुप्स में शेयर करिए, उन बच्चों को शेयर करिए जिनके पास इस तरह के वीडियो क्लासेस की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। और आप में से बहुत सारे लोगों ने नोटिफिकेशन बेल नहीं ऑन की, नोटिफिकेशन बेल में ऑल नोटिफिकेशन ऑन करिए, जैसे मेरी वीडियो पहुंचेगी आपको पहुंच जाती है। मुझे आपको लिंक शेयर करना पड़ता है, दैट्स नॉट गुड फॉर मी। ये मेरे लिए अच्छी बात नहीं कि मेरा काम आप बढ़ा देते हो। आप मेरे लिए अच्छा है कि आप सब्सक्राइबर्स हैं अगर, तो आप नोटिफिकेशन बेल ऑन करके रखिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन के थ्रू पता चल जाए कि आपकी वीडियो क्लास आ गई है। तो चलते हैं, फिर अगले वीडियो में मिलूंगा मैं, लेकिन मैं इंतज़ार करूंगा आपके कमेंट्स का। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई क्लास।